So today we are starting projectile motion. And what is projectile? It's any object which is projected, right? So if you project a mass in gravitational field, if you project a charge in electric field, it will behave in a certain way, and that behavior we will study in projectile motion. So when a particle moves under the influence of a constant force. Now here this is something which is specific for projectile motion. That force which is applied on that object, under the influence of that force, that projectile is moving, and we are specifically restricted to the forces which are constant, which are not variable. So, if a projectile or an object, a mass or a charge is moving under the influence of a constant force, that force and therefore the acceleration produced by that force tries to align the motion of that object in its own direction. Getting this point? Force tries to align that object's motion in its own direction, and as a result the projectile moves on a specific path called parabola. Force can be a constant electric force, and a charged particle can be projected in that constant electric force. Force can be a gravitational force, and a mass can be projected in that constant gravitational force. Of course, magnetic force will not be considered here, because magnetic force has a specific nature, that it is always perpendicular to the direction of motion. Always perpendicular to the direction of motion, and such type of motion, such type of force always produces circular path or circular motion. But if a constant force like electric field or gravitational force are concerned, they have a specific nature. The electric field acts on a positive charge and makes it to move in the direction of field. It acts on a negative charge and makes it to move opposite to the electric field. This is electric force. Here this one is electric force. And gravitational force, which is always vertically downward, it tries to make the object move in its own direction. So now in class 11th we will be studying only the particle which is moving in constant gravitational force. Now let me take different cases. For example, if you take an object, a ball, and you just drop it. Dropped it means its initial velocity is 0. Now just imagine. The ball will move in the gravitational field. Gravitational field is acting vertically downward. So ball, what is the behavior of ball? Ball falls vertically down in a straight line. On a straight path it moves. So just keep this behavior of the ball in mind, that when you dropped the ball, it moved vertically down on a straight path in the direction of gravitational field. फोर्स की डायरेक्शन में चुपचाप चल दी बॉल, अगर उसका शुरुआती स्पीड 0 है तो. इसी तरह से if you leave a charge, you release a charge from rest. तो जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया गया, छोड़ा गया, और वो रेस्ट से छोड़ा गया, तो जैसे ही उसको ये फोर्स एक्सपीरियंस होगा, चुपचाप फोर्स की डायरेक्शन में चलने लगेगा.
उसका अपना कोई प्रीवियस मोशन है ही नहीं, तो वो भी कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तो ये बिहेवियर देखो कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की डायरेक्शन में होता है, तो चुपचाप सीधी लाइन पे चलेगा। अब तीसरा केस लो, बॉल को ऊपर की ओर फेंका, ठीक है, कोई वेलोसिटी देकर ऑब्वियसली फेंका ऊपर, जिससे वो कुछ ऊपर जा सके, और ग्रेविटी उसे किधर पुल कर रही है? नीचे की ओर। तो इस बार मोशन और फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, लेकिन बॉल का बिहेवियर क्या होता है? ऊपर जाती है और वापस आती है स्ट्रेट पाथ पे। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर फोर्स पैरेलल टू मोशन था, फोर्स भी और मोशन भी। यहाँ भी फोर्स और मोशन पैरेलल टू, इनफैक्ट पैरेलल टू मोशन, क्या उसके पास प्रायर मोशन था ही नहीं, मोशन को कहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे फोर्स ड्रॉप किया, अपनी ओर खींच ले जाएगा, या फोर्स चार्ज को छोड़ा, अपनी ओर खींच ले जाएगा, स्ट्रेट पाथ मोशन। लेकिन यहाँ पर जब आप उसको u वेलोसिटी देकर छोड़ोगे तो फोर्स और मोशन दोनों अपोजिट टू ईच अदर हैं, लेकिन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर एंटी पैरेलल, दे हैव 180 डिग्री पर दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बॉल ऊपर जाएगी, डीएक्सिलरेट होती रहेगी, जीरो वेलोसिटी अटेन करेगी और वापस आ जाएगी, स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी। दूसरा केस देखते हैं। अब की बार हमने एक चार्ज को फेंका, और ये जो चार्ज है इसको वेलोसिटी दी कुछ, कोई यू वेलोसिटी दी इसको, और इसको हमने निगेटिव चार्ज लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फेंका विद यू वेलोसिटी। अब अभी तुम्हें क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो बिल्कुल ग्रेविटी की तरह ये निगेटिव चार्ज के मोशन को डीएक्सिलरेट करेगी, क्योंकि दोनों उल्टे हैं, और उसके बाद फिर चार्ज एक पॉइंट पे जाके रेस्ट पे आके वापस लौटेगा, लेकिन मूव कैसे करेगा? सीधी लाइन में। तो तुम केसेस देखो, अगर रेस्ट से ड्रॉप किया, अगर फोर्स और मोशन पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं, जैसे कि ग्रेविटी में आपने बॉल को ऊपर की ओर फेंका, दोनों ही केसेस में बॉल कैसे चलती है? चार्ज कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन पर। लेकिन अब हम आ जाते हैं जनरल सिचुएशन पर, और हम स्पेसिफिकली ग्रेविटेशनल फील्ड को कंसीडर करेंगे फॉर क्लास 11th। You throw a ball at some angle theta other than 0 and 180. From the horizontal you take the angle theta, क्योंकि यही हमारे लिए आसान होगा। लेकिन अगर तुम ग्रेविटेशनल फील्ड से देखो तो 90 प्लस थीटा एंगल पर तुमने बॉल को फेंका, यानी फोर्स और मोशन के बीच ऑलरेडी एंगल है 90 प्लस थीटा। अब क्या होगा? अब मोशन इधर है और ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। ध्यान से इस बात को माइंड में रखना है, क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या चाहेगा कि मोशन उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। कॉमन सी बात है ना बेटा, आप फोर्स लगाओगे किसी चीज़ पर तो क्या चाहोगे कि जिस चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन में चले। तो ग्रेविटी भी चाहेगी कि वेलोसिटी फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, चले। ध्यान से सुनना इस बात को। हर मोमेंट पर ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पर एक बहुत खास बात है जो ध्यान से समझने वाली है। तुमने बॉल को थ्रो किया है कितनी बार फील्ड में, एंड यू हैव सीन द मोशन ऑफ द बॉल। इट अपीयर्स लाइक दिस। दिस इज द शेप which is called parabolic shape, or this path is parabola.
एक तो ये बात। दूसरी बहुत सुंदर बात, हर मोमेंट पर तुम्हें पता है कि ये जो वेलोसिटी है, यहाँ पर ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे कर्व पाथ के इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंट से रिप्रेजेंट होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे लो तो इस पाथ पे इस वेलोसिटी से रिप्रेजेंट होती है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी है ना, वो जानते हो, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, ये है वी फाइनल और ये है वी इनिशियल। डेल्टा वी विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और एक्सेलरेशन। ये खास बात है, इसको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? change in velocity upon change in time, and you know that velocity and acceleration both are vectors, right? तो velocity का change हमेशा acceleration की direction में होता है। तो पहले velocity ऐसे थी, फिर velocity थोड़ा सा झुकी, और ये जो change है ये gravity की direction में होगा। अगले पॉइंट पर वेलोसिटी थोड़ा सा और झुकेगी, लेकिन इस बार भी कैसे, किस रूल को फॉलो करेगी कि जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस विल होल्ड एवरी टाइम, दैट चेंज इन वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और फाइनली ग्रेविटी वेलोसिटी को मोड़ते 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 यहाँ पर अपनी डायरेक्शन में एक हद तक करने पा जाती है। तो ग्रेविटी की ये टेंडेंसी कि वो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपनी डायरेक्शन में मोड़ ले, उस टेंडेंसी की वजह से एक खास किस्म का पाथ बॉल एक्वायर करती है, एंड दैट पाथ इज नोन एज पैराबोला। So projectile is any object which is projected in constant force field. For example, force of gravity. And that force always tries to align the motion of the object in the direction of force. And due to this tendency, the object acquires a specific path. Projectile acquires a specific path named parabolic path. So what is the path of projectile? Parabola. What is projectile? Which is projected in a constant force field, maybe electric field and maybe charge, maybe gravitational field and a mass. तो अब हम समझ गए कि हमको क्या पढ़ना है। 11th में हमको ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मास के मोशन को पढ़ना है जो किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्टेड हो, क्योंकि अगर आप उसको वर्टिकली अप या उसको ड्रॉप करें और वर्टिकली डाउन तो वो स्ट्रेट पाथ पे चलेगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम इसे पढ़ चुके हैं, और ये जो केस है ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन इसमें प्रोजेक्टाइल और ग्रेविटी के बीच अदर देन 0 और 180 एंगल है। तो ये खास केस हमको अब प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना है। तो अब हम आ जाते हैं, आप वीडियो पॉज करके अपने पॉइंट्स नोट्स लेते रहिए। यहाँ पर इस मोशन में एक बहुत खास बात है कि जो बॉल है उसको आपने u वेलोसिटी से जब थ्रो किया, और उसका एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो तुम बॉल के मोशन को ज़रा ध्यान से देखो। बॉल इज मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ऑल्सो, एंड बॉल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑल्सो। तो क्या मैं ये कहूँ कि बॉल के पास दो तरह के मोशन एक साथ हैं? एक वो ऊपर की ओर जा रही है, दूसरा वो आगे की ओर जा रही है। तो ये मोशन तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने उस कॉम्प्लिकेटेड मोशन के पीछे दो मोशंस का सुपरपोजिशन ढूंढ लिया कि वर्टिकल मोशन बॉल का और
प्लस एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड मोशन, दोनों के रिजल्टेंट से ये मोशन बना है। तो हम कॉम्प्लिकेटेड मोशन को स्टडी करने के लिए उसके सिंप्लीफाइड कंपोनेंट्स को अलग अलग ध्यान से स्टडी करेंगे। तो जो कंपोनेंट्स को स्टडी करके हम कंक्लूजन निकालेंगे वो इस कॉम्प्लिकेटेड मोशन पर भी अप्लाइड हो जाएगा। क्या है वो कंपोनेंट्स? बॉल इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट विल बी प्लस वाई डायरेक्शन मोशन. So ball will have a motion in plus y direction or minus y direction according to the question. And ball is moving in forward direction. If it is plus x direction, then ball's direction is in x direction as well as in y direction. और उसका रिजल्टेंट है ये पैराबोला या पैराबोलिक पाथ। तो हम दोनों को अलग अलग बिल्कुल देखेंगे। वी विल एनालाइज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल बाय रिजॉल्विंग इट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन सेपरेटली। तो सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में मोशन को गौर से देखते हैं। बॉल अगर एक्स डायरेक्शन में चले तो इस पे बॉल ग्रेविटेशनल फील्ड में चल रही है, तो इस पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा? ग्रेविटी। किस डायरेक्शन में? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब तुम्हें बहुत बार ये समझाया है कि अगर कोई फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब कोई फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा होता है, तो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो उसकी डायरेक्शन बदल सकता है। ना उसे एक्सेलरेट कर सकता है, ना उसे डी एक्सेलरेट कर सकता है, क्योंकि जो वर्टिकल नहीं, जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो इस मोशन को एक्सिलरेट या डी एक्सिलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या मैं ये कहूँ कि u cos थीटा पर कोई भी ऐसा फोर्स का कंपोनेंट नहीं लग रहा है जो इसको बढ़ा सके या घटा सके? ऑफ कोर्स u cos थीटा जो ग्रेविटी है वो डायरेक्शन को बदलेगी, पर उस डायरेक्शन को हम वर्टिकल मोशन के साथ अटैच कर देंगे और हम उसको ठीक से समझ लेंगे। डायरेक्शन तो चेंज होगा, लेकिन वो डायरेक्शन का चेंज हम वर्टिकल मोशन के साथ अटैच करके उसको ईजीली समझ लेंगे, क्योंकि हमने रिजॉल्व ही इसलिए किया है, हम मोशन को बहुत ईजी एनालिसिस के थ्रू समझना चाहते हैं। तो हमने पहली बात क्या कही कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन था उस पे फोर्स का कोई भी कंपोनेंट अप्लाई नहीं हो रहा, तो u cos थीटा ना तो एक्सेलरेट होगा ड्यूरिंग द जर्नी, ना डी एक्सेलरेट होगा। तो हमारा पहला कंक्लूजन दैट u cos थीटा विच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान रखना है हमको कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, इट्स मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज। अब वाई डायरेक्शन में देखो क्या होगा। जो मोशन ऊपर की ओर हो रहा है, अगर आपने u को रिजॉल्व किया x और y डायरेक्शन में, मोशन को रिजॉल्व किया x और y डायरेक्शन में, तो हमें पता है कि ये कौन सा कंपोनेंट होगा? u cos थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा? u sin थीटा। इतना तो हम सीख चुके हैं। u cos थीटा बदलेगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट u cos थीटा की डायरेक्शन में है नहीं। u sin थीटा के जस्ट ऑपोजिट है ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स u sin थीटा को क्या करेगा बेटा? डी एक्सिलरेट करेगा। तो जैसे जैसे u sin थीटा की वजह से बॉल आगे जा रही है u cos थीटा की वजह से, और आगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी, लेकिन बॉल ऊपर जा रही है इस कंपोनेंट की वजह से, और ये कंपोनेंट डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो बॉल देखो ऊपर जाएगी जैसे जैसे, उसका ये कंपोनेंट डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद ये जो u sin थीटा है, ये ज़ीरो होने के बाद ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में पलटेगा और बॉल नीचे आने लगेगी। हमें ये बात पहले से पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में।
कि पहले ऊपर जाएगी डिक्रीज होते हुए और डी एक्सिलरेट होते हुए ऊपर 0 होगी वेलोसिटी और फिर वापस लौटने लगेगी। लेकिन ये उसको उस ड्यूरेशन में आगे भी तो खींचता रहेगा यू कॉस थीटा। तो उसकी वजह से कैसा मोशन बन रहा है कि बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन कैसे, डी एक्सिलरेट हो रही है। और जब बॉल यहाँ तक पहुँची तो उसका जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी था ना, इसको वी वाई कह दें फाइनल वेलोसिटी, वो क्या हो गया, 0। y डायरेक्शन का वेलोसिटी साइन कंपोनेंट है अगर थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है तो जो साइन कंपोनेंट है वो 0 हो गया। जबकि इस पूरी डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को आगे ड्रैग करके ले जाने वाला u cos थीटा यहाँ भी बना हुआ है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा पूरी ड्यूरेशन में। यहाँ भी u cos थीटा, यहाँ भी u cos थीटा, ना डायरेक्शन बदल रही है ना मैग्नीट्यूड। तो एक मोशन आगे बॉल को खींच रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई चेंज नहीं, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट उसको खींच रहा था ऊपर, वो डी एक्सिलरेट होते हुए 0 हुआ और उसके बाद उसको रिवर्स होना पड़ा। तो जो वी वाई है वो बची हुई हाफ जर्नी में उलटकर बॉल को नीचे लाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में। तो क्या हमें समझ आया कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का बिहेवियर कैसा है? एक कांस्टेंट और दूसरा पहले डी एक्सिलरेट करेगा, उसके बाद 0 होगा, उसके बाद एक्सिलरेट करेगा, राइट? एक्सिलरेट करेगा नीचे आते समय। तो वर्टिकल कंपोनेंट बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे बॉल ऊपर गई और नीचे आई, लेकिन इस पूरी ड्यूरेशन में, इस पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको आगे घसीटता चला जाएगा और रिजल्ट होगा ये पैराबोलिक पाथ। तो अब इसको इसी एनालिसिस के बेसिस पर आगे स्टडी करेंगे। एक्स डायरेक्शन अलग, वाई डायरेक्शन अलग। तो अब इस मोशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ इसके अता पता देने वाले कुछ पहचान है। क्या? एक तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये। सेकंड, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल कंप्लीट्स इट्स मोशन, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। Let me write it. Time of flight. Maximum height attained, time of flight, and the horizontal direction में जो maximum distance वो object चलता है, मैक्सिमम नहीं कहो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्टाइल की ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है, बिकॉज यू विल हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन विच यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलो दो खास बातें ध्यान करते हैं। जो मैक्सिमम हाइट है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल मोशन। तो मैक्सिमम हाइट के लिए किस मोशन को कंसीडर करके एनालाइज करेंगे? वर्टिकल मोशन को। इसी तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट को देखो, ऑब्जेक्ट यहां से चला, पूरी जर्नी करके वापस यहां आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल इज 0 इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो हम किस मोशन को कंसीडर करेंगे? वर्टिकल मोशन को। क्लियर हो रही बेटा ये बात? वर्टिकल मोशन को आप किन मोशंस के, किन क्वांटिटीज के लिए कंसीडर करोगे? मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट।
लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल कवर करता है वो किसकी वजह से करता है? यू कॉस थीटा की वजह से। टी टाइम में यानी टाइम ऑफ फ्लाइट की ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर जाके वापस आता है, उसी ड्यूरेशन में यू कॉस थीटा उसको आगे घसीट ले जाता है यहाँ तक। तो अगर रेंज कैलकुलेट करनी होगी तो ये अकेला पॉइंट है जहाँ पर हम किसकी शरण में जाएंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दें सीधे, क्योंकि ये मोशन कैसा है? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, नो एक्सेलरेटेड मोशन। तो रेंज सिंपल, डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, सीधा। क्लियर हो रही है बात बेटा? तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके बाद रेंज फटाफट कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी है, बोर्ड में तो डेरिवेशन सीधे आता है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स बहुत करने होंगे और मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स में सीधे फॉर्मूला यूज करना कभी फायदेमंद नहीं होगा। तो जो डेरिवेशन का मेथड है वो ध्यान से देखो, क्योंकि वही मेथड तुमको बार बार लगाना है। जो फॉर्मूला मिला है ना वो बहुत स्पेसिफिक कन्फाइंड केसेस में ही लगेगा। तो फॉर्मूला याद रहे, डायरेक्टली लग सकता है, लगा दो, बहुत अच्छा, लेकिन फॉर्मूले का यूज़ आप हरगिज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं करेंगे। जो मेथड सिखाने जा रहे हैं वो ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैक्सिमम हाइट पर। अब मैक्सिमम हाइट की खासियत क्या है कि वर्टिकल मोशन जो स्टार्ट हुआ था यू साइन थीटा से, वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। और इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है। इक्वेशन ऑफ मोशन किस पर अप्लाई होती है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सारे केसेस पर, और ये वही केस है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ ध्यान क्या रखना है, ये जो v है ये प्रोजेक्टाइल का सिर्फ y कंपोनेंट है, ये जो u है ये प्रोजेक्टाइल का y कंपोनेंट है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ एक चीज और बताना चाहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई भी सवाल सॉल्व करो, बोर्ड में तो इस साल वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको कंपटीशन में मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस खूब मिलेंगे। तो हम क्या रूल यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट को, जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को क्या ले लेते हैं? ओरिजिन। फिर जितनी वेलोसिटीज प्लस वाई डायरेक्शन में है वो सब पॉजिटिव लेते हैं, मतलब जितनी क्वांटिटीज, और जितनी क्वांटिटीज माइनस वाई डायरेक्शन में है वो सब निगेटिव लेते हैं। तो हमने सबसे पहले तो ये स्पेसिफाई किया कि भैया y कंपोनेंट पर ये फॉर्मूला लग रहा है, x पर नहीं, x तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो a वाला इक्वेशन उस पे नहीं लगना है। फिर हमने कहा कि पहले जनरल फॉर्मूला लिख दिया। अब हमने चेक किया कि जिस केस पे लगाने जा रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की ओर है, और क्या है? u साइन थीटा। तो u y प्लस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2ah कर देती हूँ जनरल फॉर्मूले में। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की ओर। तो उसको देखो माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया उसको। टाइम साइन का कोई मतलब नहीं, v निकालना है, v निकालना नहीं, सॉरी, ऊपर पहुंच कर 0 हो जाता है, तो 0 है तो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं। तो अब हमने इस वर्टिकल मोशन को अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में। फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u साइन थीटा। नहीं, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, h लिखा हुआ है मैंने, टाइम ऑफ
फ्लाइट। चलो h इधर निकाला हुआ है तो h को देखो पहले कि vy क्या है 0, uy क्या है, ये है uy, u साइन थीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन क्या था, हम लोग फॉर्मूला जनरल क्या यूज़ कर रहे थे, vy इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ah, और एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की ओर था तो माइनस लिखा था g के साथ, तो यू वाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फिर 2gh अप्लाई किया और वैल्यूज़ रख दी, तो मैक्सिमम हाइट बिना किसी प्रॉब्लम के आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इसी वर्टिकल मोशन से हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलना है। टाइम ऑफ फ्लाइट आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं दोनों सिखा देती हूँ क्योंकि आपको मेथड बहुत इस्तेमाल करना है। तो एक तो ये फॉर्मूला, ऊपर पहुंचने पर अगर उसे t टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर, तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं कैसे, v इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू u इन y डायरेक्शन प्लस a t। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t टाइम में अगर वो h हाइट पर पहुंचा तो ये तो 0, इनिशियल u साइन थीटा, ग्रेविटी नीचे की ओर तो माइनस g और टाइम t, तो t क्या आ गया u साइन थीटा अपॉन g। अब इस ग्राफ को देखो, इस कर्व को देखो, ये सिमेट्रिकल है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, क्योंकि वो सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से डीएक्सिलरेट होगा और एक्सेलरेट होगा, सेम एक्सेलरेशन में मोशन कर रहा है इसलिए। तो इसका जस्ट डबल, अगर यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लगा तो पूरी जर्नी करने में 2t टाइम लगेगा। तो हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा ट्वाइस t, जहाँ t क्या है u साइन थीटा बाई जी, तो ये आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। और दूसरा तरीका कैसे करते हैं कि हमको पता है कि बॉल जहाँ से चली ग्राउंड पर वहीं आ गई, तो y डायरेक्शन में बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, ठीक है। तो y डायरेक्शन में बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, h इज़ इक्वल टू या y इज़ इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। y डायरेक्शन में पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो ये 0 लिखा। अब पूरी जर्नी में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो जो टाइम आएगा वो किसका आ जाएगा, पूरी जर्नी का, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। यू वाई क्या है, u साइन थीटा t प्लस हाफ, अब g नीचे की ओर है, देखो u साइन थीटा ऊपर था तो प्लस, g नीचे की ओर तो माइनस, और t स्क्वायर। अब t कॉमन ले लो तो क्या बचा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी t इज इक्वल टू 0। अब ये बहुत सिंपल एनालिसिस है, देखो यहाँ पर या तो टाइम 0 है, आइदर टाइम इज 0 और कीपिंग दिस इक्वल टू 0 द टाइम विल बी 2u साइन थीटा अपॉन g। या तो इसको 0 रखो इक्वल टू, प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 है या ये टर्म 0 है, इसे 0 रखोगे तो ये t इक्वल टू 0 आएगा। तो ये कौन सा टाइम हो गया, टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, जिस समय बॉल को फेंका, और या टाइम की वैल्यू इसे 0 के इक्वल रखने से आएगी और वो वैल्यू होगी 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो और रेंज क्या हो जाएगा, देख लो, रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है कांस्टेंट, वो इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, अगर एंगल आपको हॉरिजॉन्टल से दिया है तो रेंज क्या आ जाएगी, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको
इसे सिंप्लीफाई करो तो u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये रेंज आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर बोर्ड, और ये वेरी मच सिलेबस में है। तो ये प्रैक्टिस करनी है सबको और मेंशन कर लो इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। अगर इस साल भी आपका पेपर बोर्ड से आया तो, और अगर दूसरी तरह से भी एग्ज़ाम हो तो ये एग्जामिनर्स चॉइस क्वेश्चन है, इनको हाईलाइट करके रखो। तो आज हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट डायनेमिक्स पढ़ी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, मैकेनिक्स पढ़ी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, और कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की और बेहद खास बातें पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स पर फिर कॉन्फिडेंस के लिए प्रैक्टिस शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे।